Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Cyber Law and Ethics. Today we are going to start a new chapter which is Electronic Business and Legal Issues. So, might be you all of the heard this term e-commerce. So we are going to study about the e-commerce and how our business is right now based on the electronic or internet things. So, apart from that, we are studying so many different things regarding the security, privacy, taxation, and infrastructure development, and other issues which are related to the our electronic business, or you can say ki e-commerce business. Okay, so we most of you heard the term about the e-commerce. Okay, and you also aware about the term cyberspace कि हमने previously कुछ सेशंस में साइबर स्पेस के बारे में, साइबर लॉ के बारे में, इन सभी के बारे में देखा कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इवॉल्व एंड उसका अभी हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, वो कैसे वर्क में आता है और उस पर हम कैसे फोकस करते हैं. सो दैट इज अबाउट द साइबर स्पेस. तो जो हम साइबर स्पेस यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसमें देयर इज वन मेजर पोर्शन रिगार्डिंग द ई कॉमर्स. और आप बोल सकते हो कि आपका बहुत सारा वर्क ऐसा है रिगार्डिंग ई कॉमर्स. अगर आप कुछ सर्फिंग भी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ई कॉमर्स देखने को मिलेगा. और माइट बी कि देयर इज सम बिजनेसमैन और सम कंपनीज, सम ऑर्गेनाइजेशंस जो ई कॉमर्स पे भी डिपेंडेंट है. So, advance in the communication technologies within the last decade of the 20th century paved the way for the innovations promoting and rapid globalization. At that time, this term e-commerce is come into the highlight. So, electronic commercial transactions over the internet is known as an e-commerce, and e-commerce have grown rapidly over the last 5 years that many experts continue to underestimate its growth and development. क्योंकि अभी आपका रिटेल बिजनेस हो या बिजनेस का कस्टमर्स के साथ रिलेशन हो, मीन्स B2C या B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हो, ई कॉमर्स का यूज हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं इस ई कॉमर्स का सिग्निफिकेंटली पार्ट होता है आपका ये जो डे टू डे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन होता है उसमें. We are knowingly or unknowingly using the e-commerce in our day-to-day life regarding the small thing or a larger thing. So if I'll give you the introduction of e-commerce कि e-commerce को अगर technical terms में बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं. So e-commerce is an account that business is any activity including one-time nature aimed at making profit. E-commerce should be viewed as a form of business, realizing a large extent through the introduction into the business process of information and telecommunication technologies and systems. So, अगर मैं simple terms में बोलूँ, तो अभी अगर आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फूड ऑर्डर कर रहे हो या कुछ ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हो, वेजिटेबल्स ऑर्डर कर रहे हो, राइट, देयर इज सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक स्विगी, जोमेटो है, फिर बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है. तो ये सारे क्या हुए, एक टाइप के ई कॉमर्स हुए. या अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ अवर ई कॉमर्स. जो ई कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में. So, e-commerce or you can say electronic commerce is a methodology of modern business which address the need of business organizations, vendors and the customers to reduce the cost of and improve the quality of goods and services while increasing the speed of delivery. So there are many numerous ways of this e-commerce, and because of the e-commerce काफी हद तक जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो पेपरलेस होते जा रहे हैं कि उसमें आपको पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इवन मनी एक्सचेंज की भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही. विल सी दैट फर्दर कि किस टाइप से इट विल हेल्पफुल इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ओके, तो उसके कुछ वेज है
जो ई कॉमर्स फॉलो करता है. So first one is electronic data interchange. Second one is electronic mail. Third one is electronic bulletin boards. Fourth one is electronic fund transfer. And fifth one is other networking based technologies. तो इनमें से 2 से 3 चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, लाइक ईमेल है. पहले क्या होता था, वी आर राइटिंग अ पोस्ट कार्ड एंड देन हम उस पोस्ट को सेंड करते थे. सो दैट इज द पेपर वर्क एंड उसको अभी रिप्लेस कर दिया है ईमेल ने. ये आप कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, यू कैन राइट एन सिंपल मेल. आपको जो भी डेटा प्रोवाइड करना है या तो आपको कोई ऑफिशियल वर्क भी करना है, सो आप सिंपली ईमेल के थ्रू विद इन द फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स आप अपना वो वर्क कंप्लीट कर सकते हो. तो ईमेल का हम कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. जैसे मैंने बोला कि अभी पेपरलेस एक्सचेंज मनी एक्सचेंज हो रहा है. मीन्स कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो यूज करते हो मनी ट्रांसफर करने के लिए, कि अगर आपको कंसिडर एन एग्जांपल कि आप किसी हाउस में रहते हो और आपको उसको रेंट पे करना है, बट और वो आपका जो ओनर है वो किसी और सिटी में है या किसी और कंट्री में है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज सम ऑफ द एप्लीकेशंस जिसके थ्रू हमारा फंड डायरेक्टली उनको ट्रांसफर हो जाएगा बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या कोई एप्लीकेशंस के थ्रू. तो सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सो वी आर यूजिंग दिस थिंग्स इन अ डे टू डे लाइफ. ई कॉमर्स इन सभी के इर्द गिर्द है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग है, कि ईमेल है या फैक्स है, या तो अभी के डेट में बोल लो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये सारी चीजें. देन कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी मीन्स जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और उसका यूज करके कोई कोलैबोरेटिव वर्क हैपन हो रहा है. मीन्स कि आपकी कंपनी अगर 2 सिटीज में है, सो some of the employees are in another city और उनको वो particular information की requirement है. So what we can do, we can mail them, we can share information in another form too, because जो हमारा यूज ऑफ इंटरनेट है, यूज ऑफ साइबर स्पेस है, वो काफी बढ़ गया है. उसकी वजह से हमें ई कॉमर्स में फास्टर रिजल्ट्स मिल रहा है. ओके, सो कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी भी हैंडल हो सकती है. देन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज means we already talk about the electronic fund transfer. Similarly electronic data interchange भी होता है, जो मैंने बोला कि फाइल्स यहाँ से वहाँ आप कर सकते हो. तो किसी भी फाइल्स को हम यहाँ से वहाँ डिजिटलाइज फॉर्म में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसका डेटा विथ सिक्योरिटी. ये उसके अलावा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का यूज होता है मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, सेल्स के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी ऑनलाइन वर्क कर रही है, राइट. सो ई कॉमर्स इज वेरी हेल्पफुल एंड ई कॉमर्स का हम कहीं ना कहीं हमारे साइबर स्पेस में यूज करते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल ह्यूमंस को एप्लीकेबल है. फर्स्ट वन इज नॉन कैश पेमेंट्स मीन्स कि आपको कहीं पे भी अगर कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो हम वहाँ पे ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं. ई कॉमर्स enables the uses of credit card, debit card, smart cards, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वया बैंक की वेबसाइट्स है और अदर मॉड्यूल्स मीन्स जो आप बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं. जैसे इंडिया में हम भीम यूज करते हैं, पेपाल यूज करते हैं, मोबिक्विक यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं. सो दैट इज द नॉन कैश पेमेंट जो ई कॉमर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है. देन 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी मीन्स e-commerce automates the business of enterprise and the way they providing the services to their customer and it is available anytime anywhere. Means if something issue happened कि सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना था, आपने सपोज किसी एप्लीकेशन फोन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू अगर आपने अपना फंड ट्रांसफर किया है बट वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है और इसमें कुछ प्रोसेसिंग में कोई डिले हो गई है, तो उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी होती है जो आपको 24/7 वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड कस्टमर्स की सारी इशू सॉल्व करता है. उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग.
सो बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स जो इंक्रीजमेंट है मार्केट का, that is enhanced कि e-commerce increases the reach of advertising of the product and services of the business, and it help in better marketing management of the product and service. मीन्स कि पहले क्या होता था कि कोई फेमस चीज है, कंसिडर इट कि एक सिटी की कोई फेमस चीज है, सो वो क्या था उस पर्टिकुलर रीजन तक ही वो सीमित रहती थी, बट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग अभी वो चीज हम उस कंट्री में या आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी इजीली पहुंचा सकते हैं और पीपल उनका यूज भी कर रहे हैं, और इवन उनकी जो मार्केटिंग की मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज है उनके बेस पे वो क्या कर सकते हैं कि अपना सेल इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड सेल्स. जैसे मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर रीजन का कोई पर्टिकुलर चीज है, राइट. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि इन इंडिया हमारे राजस्थान में बहुत सारी ऐसे हैंडक्राफ्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं विच इज ट्रेडिशनल, विच इज नॉट अवेलेबल एल्सवेयर. सो यूजिंग दिस एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग व्हाट दे कैन डू, उनका जो प्रमोशन करना है, उनकी जो मार्केटिंग करनी है दूसरे लोगों तक, दूसरी कंट्री में भी वो चीज उनको पता चले कि हाँ ये है. तो अभी एडवर्टाइजिंग होगी, उसकी मार्केटिंग होगी, तो अपने आप उसका सेल बढ़ेगा. सो यूजिंग e-commerce, orders for the product can be generated anytime, anywhere without any human invention, and it gives a big boost to existing sales volumes. Then support, then inventory management and communication improvement. Means कि जो आप सेल करोगे, जो भी मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर ने कुछ परचेज किया है, सो उन कस्टमर्स को वो सर्विस प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स कि आपकी जो चीजें है वो इंस्टेंटली जब भी रिक्वायर होगी, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उतना टाइम जो उन्होंने दिया होगा उतने टाइम के इर्द आपको मिल जाएगी, आपको उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. एंड कम्युनिकेशन भी फास्टर हो जाएगा, हमारा एफिशिएंट हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा. मीन्स कस्टमर के बीच में और पार्टनर्स के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट होना होगा वो बहुत जल्दी होगा और उसका रिजल्ट हमें बहुत क्विकली मिलेगा. दिस आर द फीचर्स कि जिसके थ्रू हमारे डे टू डे लाइफ में ई कॉमर्स की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जोमेटो एंड स्विगी, अभी किसी को ऐसा हुआ कि किसी और रेस्टोरेंट जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है उसका कोई फूड ट्राई करना है, सो व्हाट दे कैन डू, दे ओपन द जोमेटो और वो ऑर्डर करेंगे एंड आपको विद इन 1 आवर और 30 मिनट्स आपको आपका फूड डिलीवर हो जाएगा. सो वहाँ पे पेमेंट्स के ऑप्शंस भी होते हैं, सो उसमें नॉन कैश पेमेंट होता है. फिर ऑब्वियसली अभी वो फेमस रेस्टोरेंट होगा तो उसकी एडवर्टाइजिंग की होगी कहीं पे, या तो आपने मार्केटिंग देखी होगी, उसका जो एडवर्टाइजिंग देखा होगा उसी के बेस पे आपने वो सर्च किया होगा, राइट. तो अभी आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से अभी ऑर्डर कर रहे हो और वहां से आपको फूड डिलीवरी मिल रही है, तो उसका सेल इम्प्रूव हो रहा है. तो ये सारे जो फीचर्स है वो फुलफिल हो रहे हैं हमारे ई कॉमर्स के यूज की वजह से. सो दैट इज अबाउट द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स कि ई कॉमर्स हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्पफुल हो रहा है. बट that features are applicable nowadays very much क्योंकि हमारा साइबर स्पेस का यूसेज बहुत है, हमारे इंटरनेट का यूसेज बहुत है, और ये बहुत चीजें सारी अभी फ्लेक्सिबिलिटी और इजिलिबिलिटी के साथ हमें अवेलेबल है, इसलिए हम यूज कर पा रहे हैं. बट लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स कि ये सारी चीजें हैं वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे कैसे एग्जिस्टेंस में आई है, एंड देन वी आर यूजिंग इट. सो इसका जो इवोल्यूशन है दैट इज स्टार्टेड अराउंड 1960 टू टिल डेट. अगर आप देखो तो जब भी हमारा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, उसके बाद ईमेल सिस्टम्स इन्वेंट हुए,
राइट, कि कैसे ईमेल एग्जिस्टेंस में आया, कैसे इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया, फिर ये जो सारे कार्ड्स उनका यूसेज होने लगा, और अभी एक अलग लेवल का हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें मीन्स इन सारी चीजों के साथ साथ हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया एंड हाउ इट विल हेल्पफुल अस नाउअडेज। सो in 1969 CompuServe, the first significant e-commerce company, is the established by the Dr. John R. Goltz and Jeffrey Wilkins by utilizing a dial-up connection. This is the first time e-commerce was introduced. After that, in 1979, Michael Aldrich invented electronic shopping. He is also considered as a founder of inventor of e-commerce. Okay? मीन्स जो आप अभी यूज कर रहे हो, जो Amazon है, जो eBay है, Flipkart है, okay, so that is firstly invented by the Michael Aldrich in 1979, and this was done by the connecting a transaction process computer with a modified TV through a telephone connection, and this was done for the transmission of secure data. At that time that is done for the डेटा सिक्योरिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया गया था। उसके बाद 1982 में the continued growth of technology, particularly in the electronic led to launch the first e-commerce platform by the Boston Computer Exchange. Okay, and in 1992 ऑनलाइन बिजनेस है उसने इंट्रोडक्शन में उसने एस्टेब्लिश किया। द 90s the online business to the next level by introducing BookStax Unlimited as an online bookstore by Charles M. Stack was one of the first online shopping site created at that time. Means 1992 में first बुक स्टोर, जो बुक स्टोर होते हैं उसको हमने ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट किया था और ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया था इन 1992। उसके बाद 1994 में वेब ब्राउजर टूल इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द नेटस्केप नेविगेटर, और उसके यूज से हमने विंडोज प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स का यूज किया था। Then in 1995, the year marked the iconic development in the history of e-commerce as an Amazon and eBay was launched. Amazon was started by the Jeff Bezos, while Pierce Omidyar launched eBay. We all know about the Amazon, and we might be possibly we all know about the Jeff Bezos. Then ये था फर्स्ट जब Amazon हिस्ट्री में पहली बार मार्केट में आया था। देन 1998 में पेपाल लॉन्च हुआ था, जो मैं बोल रही थी कि हम हमारा मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो उसके लिए जो टूल लॉन्च हुआ फर्स्ट वन, दैट इज इन 1998। उसके बाद 1990 में अलीबाबा का ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जो हर कोई मोस्टली जानता है। ओके, सो एट दैट टाइम पे वो लॉन्च हुआ था। एंड 2000 की साल में गूगल लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टूल नेम गूगल एडवर्ड, और इसके गूगल एडवर्ड के यूज की वजह से जो उनके रिटेलर्स है उनको पे पर क्लिक कंटेक्स्ट का सिनेरियो पता चला और वो ई कॉमर्स की लाइन में आया। उसके बाद ई कॉमर्स का डेवलपमेंट हर साल बढ़ता ही गया है। सो इन 2005 Amazon प्राइम मेंबरशिप लॉन्च हुआ, जिसमें उनको 2 दिन की शिपिंग एनुअल फ्री में मिल सकता है, वो वाला कंसेप्ट आया। फिर 2005 में स्क्वायर
इंक्रीमेंट ने एक ऐप बेस्ड सर्विस लॉन्च किया 2005 में, और बिग कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के प्लेटफॉर्म के लिए चीजें सामने आई। देन 2011 में गूगल लॉन्चेस इट्स ऑनलाइन वॉलेट पेमेंट ऐप विच इज नोन एज एन जीपे राइट नाउ, गूगल पे के। और एक और मूव लिया गया था फेसबुक के द्वारा, जिसके थ्रू जो स्टोरीज है उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया कि बिजनेस है, ई कॉमर्स है, तो उनका अभी आप जो स्टोरीज में देखते हो कि ये अच्छे क्लोथ्स की ब्रांडिंग हो रही है या फूड की कोई ब्रांडिंग हो रही है, सो दैट्स tab is taken in 2011 by the Facebook। उसके बाद 2014 में एप्पल ने अपना एप्पल पे ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया। 2014 में jet.com पब्लिश किया गया which is an online shopping portal, and 2017 में it's introduced Instagram introduced shoppable tags enabling people to sell directly from the social media platforms। तो आप फेसबुक में भी अभी देख सकते हो कि अगर फेसबुक अपडेटेड है आपका या इंस्टाग्राम अपडेटेड है तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हो। वहाँ पे एक अलग शॉप करके एक पूरा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू घर के कोई लेडीज है या स्मॉल बिजनेस पर्सन्स है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपना वहाँ पे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं। एंड ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, जो कोविड-19 का सिचुएशन हमने अभी फेस किया है रिसेंटली इन पास्ट 1 ईयर, उसकी वजह से काफी सारे लोग ऐसे थे जिनके जॉब चले गए एंड दे मूव टूवर्ड्स दिस ई कॉमर्स, कि उन्होंने खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है एंड यूजिंग दिस हेल्प ऑफ द ई कॉमर्स उन्होंने अपने छोटे से बिजनेस को बहुत अच्छी लेवल पे लेके गए हैं। सो उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और अदर सोशल मीडियाज है, उनको यूज किया है। एंड कहीं ना कहीं हम ये चीजें हमारी ई कॉमर्स को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कि जैसे मैंने बोला फूड के लिए है, या तो आपको अगर क्लोथ्स भी परचेज करने हैं तो आपको अभी पर्टिकुलर शॉप के जाने की जरूरत नहीं है। यू नो सम एप्लीकेशंस, यू नो सम वेबसाइट, इवन सम वेल नोन डिजाइनर्स के भी वेबसाइट होते हैं वहां पे जाके आप इजीली चीजें परचेज कर सकते हो। एंड टेक्नोलॉजी इज टू एक्सपांड, कि आपको दूसरी कंट्री से भी अगर कोई चीज ऑर्डर करनी है या कोई चीज मंगवानी है या इवन यहाँ से वहां उनको भेजनी है, तो with this e-commerce help we can easily fulfill our work in a very less time with proper effective cost। So that is all about the evaluation of e-commerce and e-commerce का हम जो day to day life में use करते हैं, because e-commerce is a part of our cyber space। क्योंकि अगर cyber space नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो ई-कॉमर्स का भी इवैल्यूएशन नहीं हुआ होता। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर साइबर स्पेस। एंड जो हमने प्रीवियसली कुछ लॉज देखे हैं, तो ये ई कॉमर्स को चलाने के लिए, ई कॉमर्स को यूज करने के लिए भी कुछ लॉज होते हैं एंड उनकी सिक्योरिटीज, उनकी एफिशिएंसी, उनका रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। एंड देन वी आर यूजिंग दिस e-commerce things। So that is all about the e-commerce। If you guys have any doubt regarding this, you can put an question in below comment। Thank you so much।